noun and pronoun. As you know simply that nouns are the naming words. Naming words. सिंपल भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो इस धरती पे जो भी चीजें हैं और जिनका नाम आप दे सकते हैं, सो वो नेम्स, तो वो सारे नेम्स nouns. So we can say in English, nouns are naming words for things, people, places, animals and even qualities or ideas. ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? Nouns के अंदर आती हैं. They are nouns. As an example, here you can check town, water, pain, comb and lamb. Actually, this is pen or pen, it can be. So these are generally. Now here we can think about kinds of nouns. Kinds of nouns के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं. मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है जिसमें नाउन और प्रोनाउन हम बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं. So if we talk about kinds of nouns, then you know proper noun, then you know common noun, then here material noun, then here abstract noun and here collective noun. Proper noun में you know किसी का पर्टिकुलर नेम होता है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वो एक ही नेम होता है, मतलब प्रॉपर एक ही होता है, कॉमन नहीं होता. जैसे गोवा बात करें तो एक ही गोवा है, इंडिया एक ही है, रीना एक ही है नाम. तो ये जनरली प्रॉपर नाउन में आ गए. कॉमन नाउन में जब हम देखेंगे तो कॉमन जो कॉमनली कॉमन होता है, मतलब आप समझ ही नहीं सकते. जैसे विलेज कहा मैंने, तो कौन से विलेज की मैं बात कर रहा हूँ, यू डोंट नो, सो दैट इज कॉमन. डॉक्टर, हिल, पेन, चेयर, dog, like these all are common noun. इसके बाद में आप देख रहे हैं मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन में जो भी मटेरियल्स होते हैं जनरली उनको जो है मटेरियल नाउन कहा जाता है, जिसमें आप कह सकते हैं गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, ठीक है, और सिल्वर हो सकता है. सो ऐसे जो मटेरियल्स हैं, या मिल्क हो सकता है, वाटर हो सकता है, तो ये जो इस तरह के मटेरियल हैं इनको आप क्या कहेंगे? These are material nouns. And then you can say abstract nouns. Abstract nouns के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था. The nouns, those nouns which you cannot touch, you cannot generally feel. Sorry, you cannot touch, you cannot see, but you can feel. Abstract noun वो नाउन होंगे जिनको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते. जैसे आप देखिए ब्यूटी, ऑनेस्टी, इनको आप फील कर सकते हैं. हैप्पीनेस, तो ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. देन कलेक्टिव नाउन. आर्मी, आर्मी कोई एक व्यक्ति को कह देंगे क्या? नहीं. गैंग, फ्लॉक, क्राउड, ये सब आपको कलेक्टिव नाउन के रूप में दिखाई देंगे. सो मेनली वी आर गेटिंग हियर that nouns are the naming words. Nouns are the naming words. On the other hand, different types of nouns. There are proper nouns, common nouns, material nouns, abstract noun, and collective nouns. So these types of nouns are nouns. Now, on the other hand, when we go ahead, so we can do here some exercises. Now fill in the blanks with nouns given in the box and write their types. करना क्या है आपको? इन nouns को जो आपको लिखना है और इसके बाद उनके टाइप बताने हैं. जैसे अब आप देखिए पहला आपके लिए किया हुआ है. एज एन एग्जाम्पल, द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड अट्रैक्ट्स मी. अब यहाँ देखिए आप, जो इनोसेंस है ये एक नाउन है, लेकिन ये किस तरह का नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. सेम एज इफ यू गो हियर, सो वेरी फर्स्ट 2 liters ऑफ डैश, क्या आएगा पहले बताइए, इसमें फिल क्या होगा?
milk. Sir, milk. 2 liters of milk is sufficient for making the pudding. Now can you tell me what is milk? कौन सा noun है? Sir, material. Material noun. Very good. Men- It is material. Now next one. A dash of bees gathered in the garden. So what you will say? Sir, Swam swarm. or anything else? तो आप यहाँ लिखेंगे Army. Sir, a swarm. swarm of bees gathered in the garden. So swarm is what here? किस तरह का है? Sir, collective noun. Which one? Sir, collective noun. Collective. Very good. Yes, it is collective noun. So here we can say swarm is a group of bees. तो इसलिए वो collective noun है. So a swarm of bees gathered in the garden. The next one is the dash march to the battlefield. अब battlefield पे कौन जाएगा? Sir, Army. Army. Yes, army. And army is अभी हमने देखा था army is collective noun. Very good. Very good. Very good. Next is her dash was appreciated by the teacher. So what? The music. Sir, intelligence. क्या हो Sir, सकता है यहाँ? intelligence. The music. इंटेलिजेंस हो सकता है और क्या हो सकता है? सिंसेरिटी हो सकती है ना? सिंसेरिटी हो सकती है ना? Yes, sir. चलिए सिंसियरिटी ही लगा लेते हैं. तो यहाँ पे जब आप लगाएंगे हर क्या? तो सिंसेरिटी का मतलब क्या होता है? सिंसियरिटी का मतलब होता है यू आर वेरी सिंसियर in doing your work. Generally whatever work is given to you, जो भी वर्क आपको दिया जाता है आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं इन टाइम. तो आप बहुत सिंसियर हैं, अपने वर्क के प्रति बहुत ही सिंसियर हैं. So that's it is here that her sincerity was appreciated by the teacher. Now sincerity is what type of noun? What type of noun is sincerity? Abstract noun. Abstract noun. Yes, very good. It is abstract noun because sincerity cannot be touched, cannot be seen. Now, next one, yes. The project has been prepared by the dash of Boys. class, The boys. by the Boy. Boys. boys. ठीक है, by the boys यानी उन boys के द्वारा जो है कंप्लीट किया गया है. तो यहाँ boys आएगा. So यहाँ पे कौन सा नाउन है? Sir, common noun. Collective. Yes, it is common noun. Exactly, it is common noun. Next is the audience enjoyed the dash. Music. 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 Yes, तो यहाँ पे आएगा music. Music. तो music यहाँ पे और music is which type of noun? Common noun. Sorry, Sir, it Sir, is common noun. It is common noun. Exactly, it is common noun. Now next is the children are playing in the dash. Park. Park. Park is given here. So park, and park is a common Common noun. noun. Common noun. हाँ. Next is her bangles are made up of. Gold. Made up of Gold. gold. बिल्कुल. All right. And gold कौन सा नाउन है? Material. Material noun. Yes, exactly. It is material noun. Then next, bangles. You know the meaning of bangles? Yes. Yes. Yes.
इफ वी, यस चूड़ियां होती हैं, इफ वी हैड डैश मेनी प्रॉब्लम्स वुड हैव बीन सॉल्व्ड। Tolerance. If we had tolerance, many problems would have been solved. Very good. और क्या इंटेलिजेंस नहीं हो सकता यहाँ पे? चलो इंटेलिजेंस भी हो सकता है लेकिन वो फिट नहीं बैठेगा, सो इसलिए वी कैन से हियर द टॉलरेंस। इफ वी हैड टॉलरेंस मेनी प्रॉब्लम्स वुड हैव बीन सॉल्व्ड। अगर हमारे पास सहन शक्ति होगी, टॉलरेंस होगा, देन बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज सचिन्स डैश हैज मेड इंटेलिजेंस। यस और सर ये वेरी गुड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और टॉलरेंस क्या था? एब्स्ट्रैक्ट टॉलरेंस Abstract noun. abstract noun था। यस वेरी गुड। टॉलरेंस वाज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आप जानते हैं, आई टोल्ड यू कि वो नाउन जिनको ना तो हम टच कर सकते हैं ना हम देख सकते हैं, तो टॉलरेंस को हम फील कर सकते हैं। यस, सो सचिन्स इंटेलिजेंस हैज मेड हिम व्हाट ही इज टुडे। यानी उनके इंटेलिजेंस ने ऐसा कुछ कर दिया कि जो कुछ भी आज है वो उनकी इंटेलिजेंस की वजह से है। नाउ जस्ट वी आर टेकिंग द अदर काइंड्स ऑफ नाउन्स। अभी तो हमने बात की कि नाउन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे हम कुछ काइंड्स की बात करेंगे। इसमें हम देखते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सो काउंटेबल नाउन्स, these are nouns that can be counted. Very simple these are. काउंटेबल नाउन आप जानते हैं जिनको हम काउंट कर सकें, अनकाउंटेबल वो नाउन है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल में सब कुछ आ जाएगा मोस्टली, जितनी भी काउंट करने वाली चीजें हैं। जैसे आप मिल्क कहोगे तो अनकाउंटेबल होगा, मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते। हेयर आप काउंट नहीं कर सकते, राइस आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ जो हैं वो अनकाउंटेबल में भी आते हैं। नाउ कम हियर अनकाउंटेबल नाउन्स। इससे पहले हमने यहाँ काउंटेबल देख लिया, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नाउ अनकाउंटेबल नाउन्स में दीज आर नाउन्स दैट डिनोट मटेरियल्स, सब्सटेंसेस, आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड। जैसे कॉटन है, वुड है, लगेज है, राइस है, शुगर है। Here you can see the difference. Countable nouns, uncountable nouns. Countable में आप देखिए river, town, class, group, sheet of paper, grain of rice, a liter of water. इनको हम काउंट कर सकते हैं। a liter of water को काउंट कर सकते हैं, यानी लीटर ऑफ वाटर को तो काउंट कर सकते हैं बट वाटर को काउंट नहीं कर सकते। रिमेंबर द थिंग। तो अ लीटर ऑफ वाटर को काउंटेबल नाउन है, बट अगर यहाँ वाटर दिया हुआ है ओनली तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। सो डोंट कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज। नाउ इंडिया, कोचीन प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक ही काइंड के ये हैं, और रीता, रीता काइंडनेस, मिल्क, कॉपर, स्टोन, मर्ड, ब्यूटी, मेमोरी, जॉयज, ये सब जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ध्यान रखना इंडिया और कोचीन ये भी प्रॉपर है तो एक ही तो है, तो ये अनकाउंटेबल ही तो होंगे। नाउ देयर आर सम फीचर्स। क्या फीचर्स दिए हुए हैं देखो। सर्टेन नाउन्स कैन बी बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कुछ नाउन ऐसे भी हैं जो काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। जैसे वी हैव बॉट टू मेनी केक्स फॉर द ओकेजन। अब यहाँ देखिए जब इसने कहा टू मेनी केक्स तो यहाँ पे ये काउंटेबल हो गया, लेकिन जैसे ही हमने पढ़ा था ना मेनी, मेनी काउंटेबल में आता है जनरली, मेनी काउंटेबल के आगे ही हम यूज करते जनरली। अब यहाँ देखिए आई एम हंग्री प्लीज गिव मी सम केक। अब यहाँ क्या लगा दिया, सम लगा दिया। अब केक वही है लेकिन ये अनकाउंटेबल में आ गया।
क्योंकि सम केक आप देंगे ना तो एक केक में से काट के देंगे ना तो वो काउंट थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारे केक्स होंगे तो उसको काउंट कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली nouns like experience, adventure, fish, tea can be used as countable or uncountable nouns depending upon the sentences. जैसे give me a cup of tea, हमने कहा give me a cup of tea, अब यहाँ क्या हो गया, ये काउंटेबल हो गया। जबकि दूसरी तरफ देखिए he is fond of adventure, sorry the adventure was exciting, अच्छा यहाँ ये दोनों नहीं दे रखा है, एक ही एग्जाम्पल है। अब मैंने कहा कि केवल टी, तो क्या टी को काउंट कर सकते हैं? नहीं, वो अनकाउंटेबल हो जाएगी। ऐसे ही द एडवेंचर वॉज एक्साइटिंग, द एडवेंचर वॉज एक्साइटिंग, अब एक एडवेंचर की बात हो रही क्योंकि यहाँ द लगाया है तो यहाँ ये काउंटेबल है। लेकिन जब हम कहेंगे ही इज फाउंड ऑफ एडवेंचर तो यहाँ ये अनकाउंटेबल है, किसी भी एडवेंचर की वो बात कर रहा है, यहाँ कोई काउंटिंग नहीं हो सकती। तो इस तरह से काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में हमने देखा। कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके भी कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स हम इनके करते हैं, देखते हैं क्या है एग्जाम्पल्स। देखिए yes, here fill in the blanks with the correct form of nouns given in the brackets। अब देखते हैं ये किस तरह से हमें फिल करना है। once we check, we should give dash to the poor, क्या alm या alms? we should give alms to the poor, alm आएगा या alms आएगा? बताइए, व्हाट शुड इट बी एल्म का हीरो? मतलब क्या होता है? हाँ बेटा, ये एक तरह के ना दान जैसे हम देते हैं ना कई बार, यू नो, सो ये जो एक तरह का दान होता है जो दिया जाता है पुअर को, ठीक है ना। सो वी शुड गिव alms to the poor or alm to the poor? सर एल्म alm एल्म alm to the poor, एल्म ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज इट इज नॉट इजी टू ब्रेक दीज डूअर्स मेड अप ऑफ, आयरन्स या आयरन? सर आयरन्स आयरन्स नहीं आएगा। आयरन्स का मतलब पता है आपको क्या होता है? सर कील हाँ सर लोहा, सर कील हो सकता है? नहीं, आयरन्स का मतलब होता है बेटा बेटा कील। आपने देखा होगा आयरन्स जंजीर को भी कहते हैं, और आयरन्स कई बार हम हथकड़ियों को भी, जो बेड़ियां होती हैं उनको भी कहते हैं। सो प्लीज बाय 2 dash juice cans juices from the store, क्या लिखेंगे यहाँ? प्लीज बाय 2 जूस कैन जूस juice कैन। cans, yes, जब भी 2 Cans. लगाएंगे तो juice cans लिखेंगे, juices नहीं लिखेंगे, क्योंकि juices अनकाउंटेबल हो जाएंगे। Do you like fish or fishes? आप क्या Fish, पसंद fish. करते हैं? Yes, Fish, आप fish. फिश पसंद करते हैं, तो यहाँ फिशेस करेंगे क्या? फिश करेंगे, फिशेस करेंगे? फिशेस नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ आप काउंटेबल वाली फिश की बात कर रहे हैं। एक्चुअली फिश और फिशेस दोनों को अलग अलग तरह से हम यूज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है फिश की, तो यहाँ सर फिश हमने की बात। फिश ही बोला है। यस, आपने सही बोला है, राइट। He was giving her Advice. advice or advices Advice. when एडवाइस। एडवाइस नहीं बेटा, एडवाइसेस नहीं आएगा, क्योंकि एडवाइसेस आएगा तो पीस लगेगा, पीस ऑफ एडवाइसेस।
So he was giving her advice when the phone rang. ठीक है, Yes, sir. Excuse me, sir. हमने यस Sir. सर सेकंड वाले में सर आयरन था या फिर आयरन्स? आयरन आएगा, मेड अप ऑफ आयरन। ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया था कि आयरन्स का मतलब होता है हथकड़ियां, बेड़ियां होती हैं, जंजीरें होती हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो है आयरन आएगा। ओके सर। नाउ वी डिड टू थिंग्स। क्या क्या हमने समझा है ये एक बार हम देख लेते हैं। क्या क्या समझ लिया हमने, एक बार हम दोबारा से देखते हैं। चेक हियर। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज नाउन। Nouns are the naming words we know very well. इसके बाद हमने देखा kinds of noun. Kinds of noun में हमने देखा proper noun, common noun, material noun, abstract noun और corrective noun. जिसमें हमने देखा था proper में किसी particular name, इंडिया, गोवा, रीना। common में village, doctor, hill, pen, boy, मतलब ये common जो है उनको common noun के अंदर रखा था। Then material noun में हमने देखा था gold, iron, copper. These are materials like milk, water, ये भी material है तो ये material noun में आएंगे। Then abstract noun में हमने देखा था beauty, honesty, happiness, sadness, ये सब जो है ये abstract noun में आएंगे। इसके बाद abstract noun के बारे में मैंने आपको बताया था कि the noun or the word which cannot be touched and seen, जिसको ना हम टच कर सकते हैं ना हम देख सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी है, सो कैन यू टच द ऑनेस्टी? नहीं, यू कैन फील द ऑनेस्टी। जस्ट लाइक दैट कलेक्टिव नाउन की बात की थी। इन कलेक्टिव नाउन हियर आर्मी, गैंग, फ्लॉक, क्राउड, स्वैम, इन सब की हमने बात की थी, जिसमें हमने ये कहा था कि कलेक्टिव नाउन किसी एक ग्रुप को दर्शाता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स। फिर इसके बाद में हमने ये एक्सरसाइज की थी। एक्सरसाइज में हमने ये देखा था बड़े ध्यान से। फिर इसके बाद हम आ गए थे अदर काइंड्स पे नाउन के, जिसमें हमने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल यानी नंबर के आधार पर नाउन्स को हमने डिवाइड किया था, जिसमें हमने देखा था काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल में हमने देखा था वो नाउन, दीज आर द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, जिसमें बुक्स हैं, बैग्स हैं, चेयर्स हैं और बहुत सारे हो सकते हैं। देन नेक्स्ट वी कैन से द अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में था these are nouns that denote materials, substances, ideas or concepts which cannot be counted, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। उसमें एग्जांपल में मैंने आपको बताया भी था, cotton, wood, luggage, rice, sugar, these all are like that। इसमें आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल में कुछ अंतर करके दिखाया था। फिर इनके कुछ फीचर्स हमने देखे थे एंड फाइनली हमने इसकी एक्सरसाइज देखी। तो यहाँ तक आज हम कंप्लीट करेंगे एंड ये दोनों एक्सरसाइज आप लोग अपनी नोटबुक्स में कर लेंगे एंड देन नेक्स्ट वी विल चेक अबाउट द नाउन केसेस के बारे में बात करेंगे।